Hello and good morning, dear friends. I once again welcome you in today's morning class. We have been studying, dear friends, since 3 4 days. Our first lesson of Bihayu English book, that is the Reader English book, and the name of the lesson is The Fun They Had by Isaac Asimov. As you all know, that this lesson deals with the education system in future. This lesson also deals with uh, the future generation and their learning and studying process. Dear friends, the story of this lesson is set in future, that too after almost 140 years, in 2157, where there are two major characters are there in this story, and they are Margie and Tommy. So Tommy, as we have seen yesterday, Tommy is 13 years old, and he had seen, he must have seen more. One word is there, telebooks, than Margie, because Margie was 11 years old. So what happened? Margie was not doing well in geography, so her mother called the county inspector, and the county inspector came, who was a round little man, you see, with a red face. He gave Margie an apple, and then he uh, get the electronic teacher, that is the television screen, on the floor, you see. So what happened then, that he told Margie's mother that Margie is doing very well in all the subject except geography, because the geography sector has been geared a little too quick. So what did he do? He slowed it down to an average 10-year level. Remember that Margie is 11 years old, and he slowed it down to 10 years level. So Margie was very much disappointed, you see. She was very much disappointed, she was very much sad, and she thought that why she was not doing well. And the fact is that she does not like that machine teacher, you see. And when she heard from Tommy that once, when her grandfather's grandfather was a child, okay, centuries ago, when there was a school, when there were books, students learn from books, and when she heard that there was a teacher, man or woman, a human being was a teacher, so she was astonished, and she thought that a man cannot be a teacher, a human being cannot be a teacher, because as her thinking goes, as she experienced in her 11 years, that only a machine can be a teacher, only a machine can be smart enough to be a teacher. So she was very much surprised when she heard from Tommy that there was a special building called a school, and all the students from neighborhood go there of the same age, and there was a teacher. So we will study this lesson. So this is the book, dear friends. I again have this picture for your remembrance. And the first lesson we are studying, the fun they had. I have
found one more, you see a picture regarding the fun they had, and tomorrow or day after tomorrow, this slide will go for tomorrow, 2 days, I think so. Day after tomorrow I shall find a new one for you. So the fun they had, see books are there, Tommy, Margie, maybe. Okay. So Margie asked कि Margie asked कि how who was there as a teacher, who taught them. So he answered, Tommy answered that sure they had a teacher. They had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. Regular teacher here means a normal teacher, a usual kind of teacher. Who was the usual kind of teacher in Margie and Tommy's time? A machine, a television screen. उनके समय में नॉर्मल टीचर मतलब कौन है? मशीन है. आज के समय में, आपके हमारे समय में नॉर्मल टीचर मतलब कौन है? इंसान है. और ऑप्शनल टीचर कौन है आपका? वो आपका अभी मोबाइल है या टेलीविज़न स्क्रीन है. लेकिन आज से 150 साल बाद आइजैक अजीमोव बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स टीचर नहीं रहेंगे. टीचर कौन रहेगा? आपका टेलीविज़न स्क्रीन आपका टीचर रहेगा, जिसके ऊपर हजारों लाखों बुक्स जो है एक साथ रह सकती है. Sure they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. See, dear friends, I have a detailed explanation of all these slides, in 2 or 3 paragraphs for each slide. So यहाँ पर मैं आपको पूरा समझा दूंगा, और वो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपको नोटबुक में भी लिखना है, और बाद में आपको उसको पूरा का पूरा पढ़ना है. समझा मैं बुक में से ही दे रहा हूँ आपको. ये बुक का पार्ट है. Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. A man? Margie is asking. What does she ask? She is asking, what is she asking? She is asking, how could a man be a teacher? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? Well, टॉमी बताता है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. देखिए, एग्जैक्टली हम यही करते हैं ना. हम बच्चों को बताते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उनको होमवर्क देते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं. यही करते हैं ना. तो टॉमी ने सही सही बताया कि जो टीचर होता था उस ज़माने का, जो टीचर होते थे उस ज़माने के, वो बच्चों को बातें बताते थे. बातें बताने के बाद, पढ़ाने के बाद होमवर्क देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे. मार्जी को ये बात सच नहीं लगी. मार्जी ने कहा, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ टू बी अ टीचर. अ टीचर इज़ वेरी स्मार्ट. यू सी माई मशीन इज़ वेरी स्मार्ट. स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट हियर. स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़. टॉमी सेड, श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी बोलता है, क्या बात कर रही हो मार्जी? मेरे फादर उतने ही जानते हैं जितनी मेरी मशीन जानती है, जितना मेरा टेलीविज़न स्क्रीन जानता है. जितना टेलीविज़न स्क्रीन की जानकारी है, उससे कई ज़्यादा जानकारी, या मेरे फादर की जानकारी उतनी है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेच्चा means I bet you. I bet you that a machine knows more than a human being. तो वो बेट लगाने के लिए भी रेडी है. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. ओके, ये टॉमी बोल रहा है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. तो बोलता है कि मेरे पापा जितना मेरे एक मशीन जितना जानती है ना, उतने ही मेरे पापा जानते हैं.
मैं बेट लगा सकता हूँ इस बात के ऊपर। अब मार्जी, क्योंकि टॉमी तो क्या है 2 साल उससे बड़ा है, मार्जी बोल रहा है तो सही होगा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी की इतनी तैयारी नहीं थी कि वो डिस्प्यूट करे। सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। लेकिन वो आगे बोलती है कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है जाने दो, लेकिन मैं किसी स्ट्रेंज आदमी को मेरे घर में नहीं आने दूंगी, किसी अजीब आदमी को, किसी नए आदमी को मेरे घर में पढ़ाने के लिए नहीं आने दूंगी। उसको क्या लग रहा है मार्जी को कि कोई आदमी है, टीचर है, ठीक है, आदमी टीचर होते थे, लेकिन मैं किसी, वो घर घर जाके पढ़ाते होंगे। उसको एक स्कूल वाली आइडिया पता नहीं है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, सही में मार्जी तुमको कुछ भी पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, मतलब टीचर जो है घरों में पढ़ाने नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी अपनी खुद की बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने। ऐसे होता है ना। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वो पूछती है और क्या सारे के सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? बोलता है श्योर, बिल्कुल, इफ दे वेयर द सेम एज। जैसे 6 साल का बच्चा है तो पहली कक्षा की पढ़ेंगे, 7 साल का है सेकंड क्लास का पढ़ेंगे, 8 साल का है थर्ड क्लास का पढ़ेंगे, समझे ना। 11-12 साल का है तो 6 क्लास का पढ़ेंगे, 12-13 साल का है तो 7 क्लास का पढ़ेंगे, 14-15 साल के 9 क्लास का पढ़ेंगे। तो इसलिए इफ दे वेर ऑफ द सेम एज। सो हियर आर सम सी वर्ड मीनिंग for the stupid, loftily, regular, becha, dispute, screamed, kids, okay, adjusted, all these things are there. So you just go through it, है ना, and after you also read this. This is the explanation what I have given to you just now. जो explanation मैंने आपको अभी दिया वही है, हाँ, थोड़ा आगे पीछे वही है यहाँ पे। आगे फिर आगे का पार्ट। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. वो मार्जी से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो देखो, तुमको अगर ये बुक पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो उसको, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ना है इस बुक के बारे में। मार्जी ने कहा कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। और मार्जी की क्या क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, किस में बढ़ रही है क्यूरियोसिटी? वो बुक में। तो मार्जी कहती है अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा है ना, मुझे पढ़ना है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो पढ़ना चाहती है उस फनी स्कूल्स के बारे में। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, तो आधी बुक भी कंप्लीट नहीं हुई थी, आधी से ज़्यादा बुक उसने पढ़ ली, हाँ ठीक है। मार्जी की मदर का बुलावा आया, मार्जी ने कहा मार्जी स्कूल। अब आप जान लीजिए स्कूल कहाँ है। स्कूल इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हर स्कूल? ओनली वन स्टूडेंट, मार्जी हरसेल्फ। ओके, उसके क्लास में एक ही बच्चा है, वो खुद। टीचर कौन है पढ़ाने वाले? कोई टीचर नहीं, वो कंप्यूटर स्क्रीन है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा। मार्जी ने ऊपर देखा, कहा मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स, जोन्स ने कहा नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी समय हो गया है। टॉमी तुम भी जाओ अपने क्लास में, और चलो तुम भी चलो। सो मार्जी वॉज एस्टोनिश, मतलब आश्चर्यचकित होना। एंड आस्क्ड दैट डिड ऑल द चिल्ड्रेन लर्न द सेम थिंग? टॉमी सेड दैट ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज studied the same thing. Margie refers to a machine teacher. She says that her mother told her that the machine had to be turned to the level of each boy or a girl who was studying from it. So ये थोड़ा फॉर्म का स्पेलिंग देख लेना, ये ऐसा होना चाहिए, फ्रॉम, studying from it. So each child has to be taught separately depending on their level. Tommy replied that in the past they did not do it that way. He got irritated at Margie and said that she need not read the book. Margie was inquisitive. Inquisitive का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक,
curious, Curious, curious. She was inquisitive. She wanted to know what kind of schools there were in the past, as she felt that they were fun. Margie is interested in the book. She is curious to know what kind of schools were there. Now see, ये देखिए शायद ऐसी क्लास होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से स्कूल की कल्पना है वो. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मैकेनिकल टीचर एकदम ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था. ठीक है, एकदम ठीक हो गया ना, उसका बिगड़ गया था अब ठीक हो गया, उसका इंतज़ार कर रहा है. एकदम राइट टाइम में शुरू होता है, राइट टाइम में ख़त्म होता है. It was always on at the same time every day except Saturdays and Sunday. Okay. Saturday and Sunday. Now some words are there: funny, probably, nonchalantly, tugged. We will see. Margie reached her school. It was a room. It was a room next to her bedroom. It was a virtual classroom. जैसा हमने चित्र पढ़ा था वर्चुअल क्लासरूम का. There was a machine teacher for Margie. It was on and it was waiting for her to begin teaching her. Margie's life is also very mechanical, just like a machine. There is no fun in her classroom. उसके क्लासरूम में कोई फन नहीं. It is very dull and boring, just like a machine. So Margie studies all days except Sunday, Saturdays and Sundays at the same time from his mechanical teacher. Because Margie's mother was very particular. Margie की मदर बड़ी पर्टिकुलर है उसके स्टडीज़ के बारे में. सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती थी. She had told Margie that she would learn better if she would study every day at the same time. So, how much time is it? Oh, it's okay. So, the last part of this story, my dear friends. The screen was lit up. स्क्रीन जला हुआ है. lit up मतलब लाइट का पास्ट टेंस है यहाँ, lit. स्क्रीन शुरू है. एंड इट सेड, और उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, टुडेज एरिथमेटिक लेसन. अब एरिथमेटिक का क्लास चालू हो गया. एरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स. इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. चलिए काय के बारे में है लेसन? फ्रैक्शंस के बारे में. फ्रैक्शन समझते हैं ना, 1/2, 4/5, इसको बोलते फ्रैक्शंस. हाँ, फ्रैक्शंस मीन्स पूर्णांक, अपूर्णांक. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो होमवर्क में लिखा हुआ आ रहा है कि कल का हम होमवर्क इंसर्ट करिए. इंसर्ट यानी अंदर रखना, INSERT. मार्जी डिड सो विथ ए साय. मार्जी ने एक झटके में वो कर दिया. कल का होमवर्क उसने इंसर्ट कर दिया, है ना. कोई फ्लॉपी होगी, कोई डिस्क होगा या पेन ड्राइव होगा, है ना, जो भी होगा, SD कार्ड होगा, उसने अपना होमवर्क रख दिया. बट उसका मन नहीं है लग रहा है. उसने जो बुक में पढ़ा है पुराने स्कूल के बारे में, उनके बारे में सोच रही है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स where they had old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है. अपने स्कूल के बारे में सोचना बंद कर दिया उसने जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडमदर एक छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स, क्या होता था उस ज़माने में? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड के सारे बच्चे आते थे आसपास के गांव से, है ना, आसपास के घरों से सारे बच्चे, सारे दोस्त, फ्रेंड्स केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. और चिल्लाते हुए, हंसते हुए, गाते हुए स्कूल यार्ड में आते थे. देखिए ना आपने, असेंबली के पहले कैसा हलचल रहती है हमारे यहाँ, फिर असेंबली ख़त्म होने के बाद कैसी हलचल रहती है, ठीक है, प्रेयर ख़त्म होने के बाद कैसी हलचल रहती है. तो उसके बारे में लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब बोलना पड़ता है शांत रहो, शांत रहो. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और सारे के सारे बच्चे स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे.
गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और इतना ही नहीं, साथ में बैठते भी थे और वापस जाते जाते भी साथ ही में। आप साथ ही में जाते हैं ना, कि एक जाता है? नहीं ना, साथ में जाते हैं, है ना। अब तो हॉस्टल वाले बच्चे हैं तो एक बच्चे नहीं जाते, सब साथ में घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। हर एक एज का बच्चा एक ही चीज़ पढ़ता था, वो एक ही क्लास में रहता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो एक दूसरे की मदद करते थे ना। आप नोटबुक लाते हैं, है ना, कोई मीना का नोटबुक ला दिया, सीमा का नोटबुक ला लिया, अनिल का नोटबुक ला लिया, रवि का नोटबुक ला लिया, है ना, नोटबुक के लिए, है ना। अरावली हाउस से शिवालिक चले गए, शिवालिक हाउस से उदयगिरी चले गए, इस तरीके से, है ना। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the most important thing of all is, सबसे important चीज़ क्या है? The teachers were people. Most IMP चीज़ क्या है? टीचर्स कौन थे? कंप्यूटर स्क्रीन टीचर नहीं था, टीचर्स थे पीपल। पीपल मतलब ह्यूमन बींग्स। लेकिन वहाँ उसके स्क्रीन पे आ रहा है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो है फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्या आ रहा है? स्क्रीन के ऊपर आ रहा है लिख के, वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। और वो फ्रैक्शंस वहाँ चल रहे हैं, लेकिन मार्जी सोच रही है कि यही चीज़, ये 1/2, 3/4, ये सारी चीज़ें, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। कितना पसंद आता होगा उनको इन द ओल्ड डेज। सो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। किस बारे में सोच रही थी? वो सोच रही है कि कितना फन उनको, कितना मज़ा उनको उस ज़माने में आता होगा। So this is the explanation. Margie is thinking of the story told by her grandfather. Margie feels that the school is so much fun. Children get together, they study in a fun way. They get the same homework and they can discuss it, take help and talk about it also. So all the students become friends and study in a fun way. And the most important thing is that all the teachers were people. ओके, पूरा पढ़ लेना है ये। हाँ, दिस इज द लाइफ दैट यू ऑल आर लिविंग एट प्रेजेंट माय डियर फ्रेंड्स, बट फॉर द फ्यूचर किड्स इट विल बी जस्ट ए मेमोरी ऑफ द पास्ट। लेकिन फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए जो है, ये बुक्स, टीचर्स, क्लासरूम्स, ये सब एक मेमोरी बन के रह जाएगा। अब देखिए, इसलिए हमको समय का बहुत सदुपयोग करना है ना। जो भी समय हमारे पास मिला है, हमको उसको पढ़ना है अच्छे से। So the author ends the story with the title of the chapter, The Fun They Had. The fun the students had when they went to real school. Margie just thinking about the kids of the past who went to school and enjoyed studies. See here, there are two students, they are enjoying very much reading and all. Okay. So thank you very much for today's class. So this is the end of our first lesson, my dear friends, and we will see the exercise in the next period, and after this lesson we will see the exercise. Thank you so much.